السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آمین۔ کبریائی اور بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات ہے، جس نے ہمارے ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام کو اظہار فانی کے اندر مبعوث کیا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کیا، جو تمام نبیوں کے نبی، تمام اماموں کے امام۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اللہ رب العالمین کے بعد دوسرا مقام و مرتبہ اگر کسی کا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو میرے بات میں زیادتی نہ ہوگی۔ زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے زبان سے جو نکلے صحیح نکلے، سچ نکلے، حق نکلے، جو قرآن و حدیث کے دائرے میں ہم سب کو اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں دعا کے موضوع پر کچھ بات بتانے کی کوشش کروں گی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور میرے چینل سسٹر انفو کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ دعا کا مطلب ہے اکیلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ سے گڑ گڑا کر اور رو رو کر دعا مانگی جائے، اللہ سے رو رو کر دعا کیا جائے، اس سے فریاد کیا جائے اور اس کے سامنے جھک کر اس سے مانگا جائے۔ یہ دعا نہیں جو بس ہاتھ اٹھتے ہی دو بات بھر بھر بول کے اور اس کے بعد دعا ختم کر دی جائے، یہ دعا نہیں بلکہ مذاق ہے۔ دعا اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے بات کی جائے، اللہ رب العالمین کو اپنی طرف مخاطب کیا جائے اور اللہ سے مانگا جائے اور اللہ سے فریاد کیا جائے، اور اللہ سے یہ سمجھا جائے، یہ تصور کیا جائے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہم اس کے سامنے سب سے زیادہ فقیر ہیں، اور وہ سب سے زیادہ دانی یعنی ہبہ کرنے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ یہ دعا ہے، اور اللہ رب العالمین سے اکیلے میں اللہ سے رو کر اور گڑ گڑا کر دعا کیا جائے۔ اگر ہم کسی کے بھی چوکھٹ پر جاتے ہیں، ایک بار جا کر کچھ مانگتے ہیں تو وہ شخص دے دے گا، دوبارہ جاتے ہیں پھر مانگتے ہیں پھر سے دے دے گا، لیکن تیبارہ بھی جب مانگنے جائیں گے تو اس کو غصہ آ جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین سے جتنا مانگا جائے اللہ رب العالمین اتنا ہی خوش ہوتا ہے، کیونکہ دعا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا بہت ضروری ہے۔ جو اپنے غرور، اپنے گھمنڈ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے سامنے سر نہیں جھکاتے، وہ سب سے بڑے احمق ہیں۔ ارے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے اور کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، اے اللہ تو مجھ پر رحم کر، مجھے بخش دے، ورنہ میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ एक नज़र डाली जाए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की नाफरमानी करते हुए बस्ती को छोड़ दिया और उसके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती वालों ने समंदर के अंदर फेंक दिया। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली निगल गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट की तारीखी तीन तारीखियाँ मौजूद थीं, रात की तारीखी, समंदर की तारीखी और मछली के पेट की तारीखी। 3 तारीखियों में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगने लगे और अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने आपकी दुआ को भी कबूल कर लिया। आ जाइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम औलाद की नेमत से महरूम थे। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, अब उनको औलाद का कोई आसार नहीं नज़र आता, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ की, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे साले बेटा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनके झोली में डाल दिया और साले बेटा यानी उनको भी नबी बनाकर, उनके बेटे को भी नबी बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा। आ जाइए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हम और आप जिसके उम्मती हैं, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बद्र के मौके पर देखा कि मुसलमानों की तादाद 313 और काफिर 1000 की तादाद में है और उनके पास हर चीज़ है, हर सामान है, हर हथियार है, और मुसलमानों की तरफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र डाला तो सिर्फ 313 की तादाद थी। उसमें बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, और ये सब देखने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने माथे को टेक दिया और कहा, ए अल्लाह, अगर आज जंगे बद्र के मौके पर ये 313 की जमात अगर मारी गई, हिलाक को बर्बाद हो गई, तो ए अल्लाह, इस रोए ज़मीन पर तेरा नाम कभी लेने वाला कोई ना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके दुआ को कबूल किया और जंगे बद्र में मुसलमानों को फतह हासिल हुई। मुसलमान में से सिर्फ 14 सहाबा इकराम शहीद हुए और जंगे बद्र के मौके पर 70 कजब की 70 काफिर को कैद किया गया और 70 काफिरों को काफिर मर गए, यानी उन लोग मर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल किया और जंगे बद्र के मौके पर मुसलमानों को फतह हासिल हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो नबी थे, ये तो औलिया, ये तो अंबिया इकराम थे, ये तो पैगंबर थे, अल्लाह ने इनकी सुन ली, हमारी थोड़ी ना सुनेगा। लेकिन ऐसे मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हर किसी का सुनता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा गुनहगार हो, चाहे कितना भी बड़ा खताकार हो, लेकिन अगर वो हक दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ कर दे तो अल्लाह ताला उसके दुआ को कबूल कर लेता है। दुआ तो ऐसी मांगी गई कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। खौला बिनते सालबा की तरफ एक नज़र डालिए। खौला बिनते सालबा का शौहर उनसे इज़हार कर लिया और उनको कह दिया कि तू मेरे माँ की तरह मुझ पर हराम हो चुकी। खौला बिनते सालबा परेशान हो गई। उसके बाद कहने लगी, ऐ मेरे शौहर, ये तुमने क्या किया? अल्लाह, हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं और तुमने अपने ऊपर मुझको हराम कर दिया, ये क्या किया? उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में दौड़ी आई और कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर ने मुझसे इज़हार कर लिया, यानी मुझे अपने ऊपर अपने माँ की तरह हराम कर दिया, अब मैं क्या करूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बीबी, मेरे पास इसका कोई हल नहीं है,
मैं नहीं जानता, अब तुम अपने शोहर पर हराम हो चुकी हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। खौला बिन्त सालबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फरियाद करने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिद करने लगी अपने शोहर के बारे में। और उनके शोहर को भी बहुत पछतावा हुआ, क्या मैंने ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन वो गुस्से में ऐसा कर चुके थे। अब खौला बिन्त सालबा मस्जिद नबवी में जाती हैं, वज़ू बनाती हैं और 2 रकात नमाज पढ़ती हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने माथे को टेक देती हैं और कहती, ऐ अल्लाह, सारी चौखटें बंद हो चुकी, मेरे लिए कोई हल निकालने वाला नहीं है, यहाँ तक कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट भी बंद हो चुकी है। ऐ अल्लाह, लेकिन तेरा चौखट तो खुला है। ऐ अल्लाह, अगर तेरी चौखट से नहीं मुझे कुछ मिला तो मैं किसके चौखट पर जाऊंगी। ऐ अल्लाह, तू में ऐसा कुछ कर कि मेरे और मेरे शोहर के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए, जो कुछ बिगड़ चुका है सब कुछ ठीक हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, जिब्राइल, मेरी बंदी मुझे पुकार रही है, जाओ उसके मामले को हल करो। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरह मुजादिला के अंदर फरमाते हैं, क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। यकीनन सुन लिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस औरत के फरियाद को जो आपसे अपने शौहर के बारे में लड़ रही थी, और अल्लाह ने उसके लिए राह हल निकाल दिया और कहा, जो अपने बीवी से ज़िहार कर ले, यानी अपने माँ के पीठ की तरह अपने ऊपर हराम कर ले, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो एक गुलाम आज़ाद करे, और उसका ताकत नहीं रखता तो वो 60 मिस्कीन को खाना खिलाए, और वो भी नहीं कर सकता तो 60 रोज़ा रखे, मतलब पैदर पे बराबर लगातार रोज़ा रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए हल निकाल दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम दुआओं को सुनता है। वो दर दर की ठोकरें खाने वालों, वो परेशानियों में घिरे हुए लोगों, वो जिसके पास कोई इलाज नहीं है, डॉक्टरों ने और तबीबों ने जवाब दे दिया हो, मेरी बात कान खोल कर सुनो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने माथे को टेक दो, अल्लाह रब्बुल हलाल रोज़ी खाओ और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने माथे को टेक कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो। इंशाअल्लाह ज़रूर वो तुम्हारी दुआ को सुनेगा, ज़रूर तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा, ज़रूर तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, और जिस चीज़ मुश्किल में तुम फंसे हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए ज़रूर कोई हल निकालेगा। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि अल्लाह, हमें दुआ को दुआ के तरीके से मांगने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हम सबको जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और मेरे चैनल सिस्टर इन्फो को भी सब्सक्राइब करें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।